24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 12 of English Grade 5. The unit title is The Horse and Cattle Show. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict the content or vocabulary of a text from pictures. Demonstrate conventions. What kind of festivals are celebrated in Pakistan? बहुत से हैं, लेकिन आप जाहिर है उनकी कोई फहरिस्त तो इस वक्त नहीं देंगे, मगर आप बता सकते हैं कि ये फेस्टिवल्स जो हैं जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं वो रिलीजियस हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं और लोकल हो सकते हैं। देखें ना, जैसे ईदैन है तो रिलीजियस है, कल्चरल कोई इलाकाई त्यौहार ऐसे हैं जैसे उर्स होते हैं वो, या इस तरह के कोई मेले होते हैं। नेशनल होते हैं जैसे 23 मार्च को होता है यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी होता है 14 अगस्त। और फिर ये लोकल होते हैं जैसे मेला चरागा होता है लाहौर। What is a fair and how is it different from festival?
अब देखिए, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ऑनरेबल टीचर से, ये आप इंट्रोडक्शन में ही बता दें बच्चों को। एक तो है त्यौहार, दूसरा है मेला। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? A fair is a type of entertainment in a field or park at which farm animals and products are shown and take part in competitions. अब देखिए, फेस्टिवल को तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और फेयर को यानी मेले को हमने अभी डिफाइन कर दिया। आप बच्चों को बताइएगा। Tell the students that they are going to read about the famous fair of Lahore called Horse and Cattle Show. अब इसको उर्दू में या तो मेला मवेशियां कहा जाता है या फिर अंग्रेजी के अल्फाज ही इस्तेमाल करके इसे हॉर्स एंड कैटल शो कहा जाता है और ये बहुत मशहूर है। Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. The Horse and Cattle Show. Last year, after the annual exam, Aslam and Samina came to Lahore. They wanted to stay with their uncle Islam for holidays. They wanted to visit Lahore and especially the famous Horse and Cattle Show. This show is held in the spring season. They only read about this show in books. The next day, Uncle Islam took them to the show. Both Aslam and Samina were excited to see so many animals. The animals were decorated with flowers and beads. They were surprised to see the beautiful horses, cows, buffaloes, camels, sheep, goats, and chickens. The show also featured folk dances by students clad in traditional and regional dresses. They were representing cultural features of all the 4 provinces, Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir. They enjoyed horse riders formation, cattle show, and cultural floats showing traditional lifestyles of various parts of the country. Later on, children presented special songs while bands of army and Punjab Rangers played beautiful tunes. Tent pegging was held at the stadium, which was highly appreciated by the audience. They also went to see the stalls of food, folk music, and handicrafts. Aslam ate ice cream and Samina ate golgappe. They had lots of fun. They came back home happily. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. The first word, honorable teacher, is annual. अब इस वर्ड में एक ही कैच है। आमतौर पर जिनको नहीं मालूम होता और उनकी या प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो इसको आमतौर पर एनुअल बोलते हैं, एनुअल। Whereas the correct pronunciation of the word is, आप गौर से सुनिएगा और बच्चों को भी बताइएगा, एनुअल। एनुअल यू की साउंड इसमें जाहिर करनी है, एनुअल। डेकोरेटेड, अब इसमें खास जो बात है वो है कि सी के बाद जो ओ आता है उसको हमने ओ की सिंपल आवाज की तरह नहीं बोलना। अब अगर सिंपल ओ की आवाज की तरह बोलेंगे तो हम इसको कहेंगे डेकोरेटेड, वो गलत हो जाएगा। ये जो ओ है सी के बाद, इसको अ साउंड के साथ बोलना है, शॉर्ट अ साउंड, और ये बोला जाएगा डेकोरेटेड, डेकोरेटेड।
नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल। अब यहां भी दो बातें हैं, आप नोट कर लें, बच्चों को भी बताएं कि दो नहीं तीन समझ लें। एक तो ये है कि टी आर की जो साउंड है, जो क्लस्टर है दो लेटर्स का, इसको फास्ट ट्रैक पे रख के बोलना है, यानी ऐसे बोलना है जैसे ये एक ही लेटर लगे, ट्र ट्र। दूसरा, टी आर के बाद जो ए है उसको लॉन्ग साउंड के साथ नहीं बोलना, फास्ट अ। और तीसरी बात इसमें खास ये है कि स्ट्रेस इसमें डी पर आना है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल नहीं कहना, ये भी आप जरा बच्चों को बताइएगा कि ट्रेडिशनल नहीं कहना, ट्रेडिशनल, डिशनल और डी पर स्ट्रेस के साथ आप बोलेंगे तो फिर ऐसा सही बोला जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज अप्रिशिएट। अब इसमें दो बातें आप नोट कर लें। एक तो ये है कि जो ए की साउंड है, पहला जो ए है उसकी अ, और दूसरा इसमें स्ट्रेस आर पर है। अब अगर सही प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का किसी को नहीं मालूम तो देयर इज एवरी चांस दैट दे स्पीक इट एज एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड। अब इसमें दो तीन किस्म की गलतियां इकट्ठी हो जाएंगी। सो द करेक्ट वर्ड, प्लीज नोट इट, इज अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड। ऑडियंस, ऑडियंस नहीं कहना, ऑडियंस, ऑडियंस। स्ट्रेस इसमें ए पर है, प्राइमरी स्ट्रेस ए पर है और सेकेंडरी स्ट्रेस डी पर है, ऑडियंस। हैंडीक्राफ्ट्स। अब इसमें दो बातें, एक तो ये स्ट्रेस आर पर है, देखें कितना बाद में आर है आ रहा, लेकिन स्ट्रेस आर पर है। और दूसरी जो खास बात इसमें है कि बाज़ औक़ात पढ़ने वाले इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसको हैंडीक्राफ्ट्स कहें या हैंडीक्राफ्ट्स कहें। सो प्लीज नोट इट ऑनरेबल टीचर एंड टेल द स्टूडेंट्स टू दैट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। आर पर देखा स्ट्रेस आ रहा है। लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन नाउ। ये द सब्जेक्ट इज पैटर्न्स ऑफ इंटोनेशन। ये चलते चलते जरा पैटर्न्स जो लफ्ज है इसके प्रोनाउंसिएशन को भी नोट कर लें, बच्चों को भी बताएं। बहुत दफा पढ़ने वाले इसको पैटर्न पढ़ जाते हैं, वो पैटर्न और वर्ड है, ये है पैटर्न्स, पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन नहीं, इंटोनेशन। दिस इज एट पेज 107 and SLO is number 4. Honorable teacher, अच्छा पहले मैं डिफाइन कर दूं with the help of read me. Define intonation with the help of read me. Intonation is the rise and fall of the voice in speaking, especially as this affects the meaning of what is being said. ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटोनेशन का। और याद रखिए ऑनरेबल टीचर कि किसी की कही हुई बात का कितना इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है उसकी इंटोनेशन पर, और इफेक्ट से भी पहले उसके मानी, यानी देखिए एक तो है ना कि आपने किसी सेंटेंस में कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उन्हीं वर्ड्स के साथ आपका जो लहजा है, आपके जो जेस्चर्स हैं, और ख़ास तौर पर आपके बोलने में जो उतार चढ़ाव है, ज़ेरो बम जिसको कहते हैं, नीचे ऊपर होना आवाज़ का, किसी एक लफ्ज़ पर ख़ास तौर पर जोर देना या ना देना, उससे मैंने कहा ना कि इफेक्ट तो होता ही है, बदलता है, लेकिन
सेंटेंस के मानी भी बदल जाते हैं। अब किस तरह? देखिए, मैं आपको एक ना बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ, बहुत दिलचस्प वाकई। आप जरा सुनिएगा गौर से। किसी बंदे ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि स्कूल में किसी बच्चे ने कोई काम किया है, अब आपने उसको अप्रिशिएट करना है या उसकी सरजनिश करनी है, उसको डांटना है। और ये दोनों काम एक ही लफ्ज से हो सकते हैं और हो जाते हैं, और वो लफ्ज है शाबाश। अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी बच्चे ने किसी काम में, तो आप उसको जो ही मिलते हैं आप कहते हैं शाबाश। और अगर आपने उसको अच्छी तरह तैयारी भी करवाई थी मगर उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, तो फिर भी आप इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते कैसे हैं? शाबाश। अब देखा, लफ्ज़ वही है, कहने के अंदाज में फ़र्क है। अब ये तो सिर्फ एक लफ्ज़ की बात है। अब पूरा जुमला बोलते हुए जब उसको चेंज करते हैं अपनी टोन को, तो उससे मानी भी बदल जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट भी बदल जाता है। अब इसमें ये देखिए पेज 107 पे, read the given sentences of the three patterns of intonation. अब एक है falling, rising pattern, falling pattern, rising pattern and fall and rise. अब falling क्या है? कि आपकी आवाज वर्ड्स के साथ साथ आहिस्ता हो जाएगी। अब कैसे पढ़ेंगे आप? Let me read these sentences. You can choose any books you like. What do you think? ये falling है। अब rising में, you should be punctual. Can you come at 8 o'clock? Then comes fall rise. I don't know what happens. Let us see who wins the game. So this is intonation. और honorable teacher, आप जरूर बच्चों को भी बताइएगा। Let's come to the dialogue now. Ask the students to role play the dialogue. Page is 108 and SLO is number 5. Komal, hello Hassan, what are you doing? Hassan, I'm reading an article about the importance of trees. Komal, wow, can you tell me something about it? Hassan, of course. Trees are our best friends. We need to plant a lot of trees. Trees help us in many ways. They produce oxygen. We need oxygen to breathe in and live. Trees provide us a lot of food and wood to make furniture. Wood is also used as fuel. Komal, yes, trees also give us shade. Hassan, you are right. Komal, we should plant more and more trees. Hassan, yes, we should. Komal, let's go for a walk. Hassan, let's go. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Cattle, मवेशी, ये बुनियादी तौर पर लफ्ज़ ऑनरेबल टीचर वैसे बता रहा हूँ कि ये मवाशी है, ये उस मवेशी उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। बीड, पीस ऑफ ग्लास और वुड, वो जो दाने होते हैं, बीड्स। फोक डांसेस, लोक रक्स। क्लैड, मलबूस। फ्लोट, बड़ा सारा तख्ता आगे इंजन सा लगा हुआ है। A large vehicle on which people dressed in special costumes are carried in a festival. Handicrafts, दस्तकारी, हाथ से बनी हुई चीजें। Its homonyms now, page is 110 and SLO is number 8. Define homonym with the help of README. Homonym is a word that is spelled like another word or pronounced like it, but which has a different meaning. For example, can meaning be able and can meaning put something in a container. ये highlight the importance of homonyms in vocabulary. ये दो किस्म के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्पेलिंग्स वही हों, मुख्तलिफ स्पेलिंग्स के साथ आवाज़ एक हो, वो भी होमोनिम्स हैं। और अगर उन्हीं स्पेलिंग्स के मीनिंग्स डिफरेंट हों तो वो भी दो मुख्तलिफ वर्ड्स शुमार होंगे और उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इस पे हम होमोनिम्स पे पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी तफसील से, सो हम इसकी तफसीलात को
स्किप करते हैं। Call upon the students to consult the dictionary in this regard. डिक्शनरी में वो देखेंगे तो उनको बहुत से होमोनिम्स मिल जाएंगे. Let's come to the writing part. Writing a fable, pages 112, SLO is 10. Tell the students what a mind map is. A mind map is a diagram that presents information with a central idea in the middle and connected ideas arranged around it. Define fable. अब जाहिर है बच्चे जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये सोचेंगे ये फेबल होती क्या है. Define fable for the students. Fable is a traditional short story that teaches a moral lesson, especially one with animals as characters. अब share the following fable with the students. ये fable मैंने सजेस्ट कर दी है आपके लिए. ये आप बच्चों को ज़रूर आप लिख दीजिएगा. थोड़ा लंबा काम होगा लेकिन कोई हर्ज नहीं है. The ant and the grasshopper. टिड्डा जिसको कहते हैं. आप सुना देना या डिक्टेट करवा देना. In a field one summer's day, a grasshopper was chirping, singing, and hopping around for fun. An ant passed by carrying an oar of corn back to his nest. Why not come and chat with me, said the grasshopper. Instead of doing all that work, I'm helping to store up food for the winter, said the ant, and suggest you do the same. Why bother about winter, said the grasshopper. We have got plenty of food at the moment. The ant went on its way and continued its work. When the winter came, the grasshopper had no food and was dying of hunger. The ant, however, had plenty of food to last all through the winter from his hard work in the summer. Then the grasshopper knew it's always wise to keep prepared for the future. So ये कहानी है मुख्तसर सी जिसमें कोई मॉरल लेसन भी होता है. और फेबल में आमतौर पर एनिमल्स इसके कैरेक्टर्स होते हैं. अब इस स्टोरी में जो ये मैंने आपसे शेयर की है, एक चूंटी और टिड्डा. चूंटी अपनी खुराक ले जा रही थी. टिड्डे ने कहा कि भाई मेरे पास तो बहुत है घर में, आओ गपशप करते हैं. तो एंट ने कहा कि नहीं, फिर ये सर्दियों में काम आई. और जब वो सर्दियाँ आईं, टिड्डे को ज़ाहिर है मुश्किल हुई, तो फिर उसने ये सबक सीखा. इट्स ऑलवेज वाइज टू कीप प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. अब इसको आप ना अप्लाई कीजिएगा ऑनरेबल टीचर. बच्चों को बताइएगा कि ये है तो एनिमल्स की स्टोरी, मगर इसमें से जो सबक मिलता है वो इंसानों के लिए भी है. और ख़ास तौर पर फिर आप बच्चों को बताइएगा कि आपके लिए ये सबक है कि शुरू से आप मेहनत करो, तैयारी करो. ये कभी ना सोचो कि इम्तिहान करीब आएंगे तो पढ़ लेंगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.